Welcome students, welcome to the lecture 11 of my curvature chapter. I try to finish the chapter in this lecture. My aim is to attempt two questions today. This is first question. We start reading the question. There is a curve r equals to f theta and we are given a condition. What condition? There are certain points on this curve. The points on the curve at which a particular phenomena is happening. What phenomena is happening? The circle of curvature at those points, corresponding to those points, are passing through the horizon. The whole idea I am going to explain you in the figure which I am going to draw. So suppose there is a curve r equals to f theta and this is a particular point on this curve. This is a very special point on the curve, and what speciality this point has? When I draw circle of curvature at this point, and you all should know that in which manner a circle of curvature is drawn. I have told you in my previous lectures. First of all, I draw tangent, then I draw normal, and on that normal I choose a point C. Suppose this is the normal, and on this normal I choose a point C such that this distance is rho, radius of curvature. Now taking C as center and CP as radius, I draw the circle. So this is the circle of curvature. Now you remember that in the figure drawn by me in my previous lectures, I have taken O here. And what is O? O is the horizon, or you can say O is the pole. But when I read this question carefully, this question is saying that circle of curvature pass through the horizon. Now what does it mean? Circle of curvature pass through the horizon. इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किल ऑफ कर्वेचर है इस करंट पोजीशन में अभी तो O से पास नहीं होगा. तो ये कह रहा है कि ये जो मेरा कर्व है और इस कर्व पर ये जो स्पेशल पॉइंट है, इस पर जो सर्किल ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया गया, ये जाकर O से पास हो रहा है. तो इस केस में आपको O को इस सर्किल पर कंसीडर करना पड़ेगा. एक तरह से जब P एक ऐसा स्पेशल पॉइंट मैंने चूज किया कि जब मैंने उस पर सर्किल ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया, तो वो सर्किल ऑफ कर्वेचर, there may be three cases. O lies inside this circle, O lies outside the circle, and in the third case, O lies on this circle. So this is the speciality of this point. ये केवल इसी पॉइंट की स्पेशलिटी है. हो सकता है इसके दूसरा पॉइंट में यहां पर चूज कर लूं इस कर्व का, उस पर जब मैं वापस सर्कल ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करूं तो वो O से पास नहीं हो. तो इस कर्व पर ऐसे कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन पर ये फिनोमेना घट रहा है. कौन सा फिनोमेना घट रहा है? कि इन पर मतलब ड्रॉ किया गया सर्कल ऑफ कर्वेचर ओरिजिन से पास हो रहा है. तो अब हमें प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है? हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का लोकस इस इक्वेशन से गिवन है. अब आप इसको अगर रीड करोगे तो आपको इस क्वेश्चन में लोकस वर्ड पकड़ में नहीं आएगा, पर लैंग्वेज यही कह रही है कि हमको क्या प्रूव करना है कि ऐसे पॉइंट्स जिन पर ये स्पेशल घटना घट रही है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, ऐसे पॉइंट्स इस इक्वेशन के द्वारा गिवन है.
गिवन का मतलब these points satisfies this equation, or in other words locus of these points is that equation. तो कुल मिला के हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है, ये इक्वेशन एस्टेब्लिश करनी है. बाय विच कंडीशन? ये सर्किल ऑफ कर्वेचर ओरिजिन से पास हुआ है. तो इसके लिए ये एग्जाम में डायग्राम बनाना मस्ट हो जाएगा. फिर हमने यहाँ पर O से P को ज्वाइन कर लिया. सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्टिंग करोगे लैंग्वेज से. क्या लैंग्वेज लिखेंगे? मैं इसको खाली आपको बोल के बता रहा हूं. यू हैव टू राइट दिस. आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन द फिगर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सर्किल ऑफ कर्वेचर एट P passes through O. O means origin, where P is a P bracket r comma theta is a point on the given curve. Now remember that if I am considering the coordinate of this point to be r comma theta, it means this length is r. Okay, ये तो सिंपल है. पर अब आप याद कीजिए कि what is the meaning of CR, जो कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर में बताया है कि CR हम किसको कहते हैं. CR is the length of the chord of curvature which passes through O. तो इस फिगर में chord of curvature कौन है? मतलब इस सर्किल की वो कॉर्ड जो O से पास होती है. तो इस सर्किल की वो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि इट मस्ट हैव वन एंड पॉइंट एट P. और फिर हम कह रहे हैं द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासेस थ्रू O. तो ये वो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर होगी. इसका मतलब इन द फिगर CR इज नथिंग बट OP एंड OP इज अगेन सिंपली R. तो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये कंसेप्ट आपको एग्जाम में, अगर आप सिंपली ये लाइन भी याद करके चले जाते हैं, बाकी तो इस क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन पार्ट है, वो कोई मुश्किल नहीं है. ये मेन कंसेप्ट है, की लाइंस को हम कहते हैं क्वेश्चन की. इसके बाद आप क्या करेंगे? व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ CR. ठीक है, 2 rho sin phi. Now in the next line what I am doing, I am writing the formula in polar form, formula of rho. ये जो मैं लिख रहा हूं, it is nothing but the polar formula of radius of curvature. ठीक है. नाउ इसके बाद आप क्या नोटिस कर रहे हैं? साइन फाई. अब यहां पर साइन फाई की जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की. वो कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूं? तो देखिए, आप इसके लिए आप यहां पर एक साइड में ट्राइंगल बनाओगे. मैं यहां बना रहा हूं, इस साइड में हो सकता है वीडियो कट जाए ये, तो मैं यहां बना के दिखा रहा हूं आपको. एग्जैक्टली यहां बनाना है, इस लाइन के ठीक अलाइनमेंट में. तो आप देखिए, इस ट्राइंगल में आप ये एंगल फाई कंसीडर करोगे, और ये ट्राइंगल हमने पहले ही बनाया हुआ है इन माय फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, जब हमने डेरिवेटिव्स ऑफ आर्क्स के फॉर्मूले डिराइव किए थे. पर एक डिफरेंस है यहां पर कि इन फर्स्ट चैप्टर इस लेंथ को, जो कि हाइपोटेन्यूज है, इसको मैंने DS मार्क किया था, इफ यू रिमेंबर. DS, जिससे हमने फिर फॉर्मूला लिखे थे dr/ds इज इक्वल टू cos phi, फिर लिखा था r/dθ/ds इक्वल टू sin phi. याद आ गया? लेकिन अब यहां मैंने आपको बताया, यह एक हमको डिफरेंस रखना है. वो क्या है कि इसकी वैल्यू हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे. हैविंग नोन द 2 perpendicular sides of right angle, if I apply Pythagoras theorem, then I can write the value of the hypotenuse. So what is this value? Using Pythagoras theorem, I can write sum of the square of these 2 sides. So dr square plus r square d theta square. Okay? तो अगर आप ये ट्राइंगल बनाकर
और इसी ट्राइंगल के नियर आप साइन फाई की वैल्यू निकालकर फिर हम सीधे यहां पुट करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ साइन फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। तो आप देखिए ध्यान से, ये आई थिंक मैंने सही लिखा है, लंब बटा कर्ण दैट इज साइन फाई। नाउ अब मैं यहां पर इस वैल्यू को एक दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं। मैंने डिनोमिनेटर से डी थीटा स्क्वायर कॉमन लिया, तो वो डी थीटा स्क्वायर जो है वो इसको कैंसिल कर देगा और नीचे जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा मेरा ये। तो दिस वैल्यू ऑफ साइन फाई आई एम गोइंग टू पुट इन दिस लाइन। तो आप देखिए यहां पर पुट करता हूं साइन फाई इक्वल्स टू आर अपॉन, और ये सारा जो काम है ये आप साइड में, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, आप इसको यहां पर करके बताएंगे। तो दिस इज माई वैल्यू ऑफ साइन फाई इज इक्वल्स टू आर, या ठीक है। नाउ आई स्टार्ट सिंप्लीफाइंग द लास्ट लाइन। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो व्हाट शुड आई डू? कुछ कैंसिलेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या कैंसिलेशन हो रहा है? एक तो ये आर दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, दूसरा ये जो टर्म है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, ये ऊपर और नीचे दोनों जगह है। तो यहां पर जब मैंने इस टर्म को कैंसिल किया तो यहां पर इसकी 1 पावर न्यूमरेटर में मेरे पास रह गई। क्लियर है ये? 3/2 पावर और नीचे हाफ पावर, तो ऊपर 1 पावर रह जाएगी। और फिर ये जो टर्म है मेरी नीचे, ये मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 की तरफ ले गया। तो व्हाट आई विल गेट, आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैं इसको दोनों तरफ और सिंप्लीफाई करूं तो इट इज क्लियर दैट ये टर्म यहां दोनों साइड से कैंसिल हो रही है। देखिए आप, ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस टर्म एंड दिस टर्म बिकम्स आइडेंटिकल। तो दोनों साइड से हम LHS और RHS से कैंसिल कर देंगे। और क्या सिंप्लीफाई हो रहा है? यहां है 2r स्क्वायर, यहां है r स्क्वायर, तो इस r स्क्वायर को मैं इधर जाकर माइनस कर देता हूं। तो 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बचेगा। और फिर ये वाली जो टर्म है ये भी मैं लेफ्ट हैंड में ले जा रहा हूं, इट बिकम्स प्लस, और फिर मैंने यहां पर क्या किया, r कॉमन ले लिया, तो आई हैव दिस। ओके, नाउ इन लास्ट यहां से मैं कंक्लूड करूंगा कि सिंस r इज नॉन जीरो, क्योंकि आप देखिए r क्या है, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एंड p पॉइंट इज अदर देन ओरिजिन, और इन अदर वर्ड्स p डज नॉट नेसेसरली ओरिजिन। तो r जीरो किसके लिए होता है? ओरिजिन के लिए। तो p इज ए पॉइंट डिफरेंट या अदर देन ओरिजिन, सो r जीरो हो नहीं सकता, तो फिर ये जीरो होगा। और लास्ट, अब आप देखिए कि मुझे जो कर्व की इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में, दैट इज r इक्वल्स टू f थीटा, इसका यूज मैं यहां कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? आई एम पुटिंग f थीटा फॉर r, ये f थीटा की जगह मैंने r पुट कर दिया, और इसका अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूं टू फाइंड d2r बाई डी थीटा स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं f डबल डैश थीटा, क्योंकि जब मैं इसका एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो dr बाई डी थीटा इक्वल्स टू f डैश थीटा, फिर अगेन दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो d2r बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू f डबल डैश थीटा, एंड दिस इज माय रिक्वायर्ड रिलेशन। यहां पर लिख सकता हूं हेंस प्रूव। तो देखा आपने, इसको हमने क्वेश्चन को मतलब कर लिया,
कुल मिला के इसके लिए विच लाइन इज द की लाइन? अगेन आई मेक यू रिमेंबर विच लाइन इज द की लाइन? फर्स्ट लाइन। और वो डायग्राम जो मैंने बनाया था, मतलब आपको डायग्राम इन सच ए वे बनाना है कि जो आपका सर्किल ऑफ कर्वेचर है उस सर्किल पर ओ लाई करे। तो आप पहले सर्किल बना लीजिए, फिर उस पर ओ को आप शो कर दीजिए। और मेन लाइन क्या हो गई? सी आर इक्वल्स टू आर, वेयर सी आर इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो दिस इज माई वन क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी है तो मैं आपको खाली उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो क्वेश्चन जो है इट इज रिगार्डिंग इलिप्स। देखिए, इट इज द इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स हैविंग सेंटर एज ओरिजिन एंड द टू एक्सिस एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस इलिप्स की इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इज द स्टैंडर्ड इलिप्स। तो इस इलिप्स की ये इक्वेशन हमें गिवन है, यानी कि क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दिस इलिप्स। अब क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस इलिप्स की जो माइनर एक्सिस है, नाउ यू शुड नो कि इलिप्स की मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है। तो लुक हियर, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि दिस इज द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ए डैश, दीर्घ अक्ष, एंड दिस इज द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं लघु अक्ष। अब क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, सुनिए आप ध्यान से, बुक्स में भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑफ वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस लाइज एट द अदर एंड, तो व्हाट डज दिस सेंटेंस हैज मीनिंग? इसका मतलब ये कह रहा है कि इस माइनर एक्सिस के दो एंड्स, बी एंड बी डैश, तो कह रहा है कि अगर मैं बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट ये कर्व है, डी इज इट वन ऑफ इट्स पॉइंट, अगर मैं बी पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी डैश है, सिमिलरली बी डैश के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बी है। फिर से देखिए आप, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट को कर्व का पॉइंट मानकर इसके ऊपर सर्किल ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करता हूं इन यूजुअल वे, तो उस सर्किल ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर होगा वो बी डैश है। ये क्वेश्चन के द्वारा गिवन है बात। कैसे गिवन है? इफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एनी वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस लाइज एट द अदर एंड, यानी बी पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बी डैश पे लाई कर रहा है, सिमिलरली इन रिवर्स वे बी डैश के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बी पे लाई कर रहा है। तो ये कह रहा है अगर ये फिनोमेना, ये इवेंट हो रही है, तब आप प्रूव कीजिए कि इस इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 1/√2, ये लाइन मुझे प्रूव कर दो। ठीक है, तो ये तो हुआ क्वेश्चन का मीनिंग। जो बिना मीनिंग समझे क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं तो मैं सिंपली स्टार्टिंग इससे करता हूं, गिवन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द पॉइंट। अब यहां पर मेरी चॉइस है कि मैं बी के लिए करूं या बी डैश के लिए करूं, तो मैं बी के लिए करता हूं फॉर द पॉइंट बी। अब आपको याद क्या रखना है कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स, एक्चुअली इन चारों के कोऑर्डिनेट्स आपको आने चाहिए। इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है a,0, ए डैश का होता है -a,0, बी के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,b और बी डैश के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,-b। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो व्हाट आई एम राइटिंग, गिवन सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द पॉइंट बी इज बी डैश। अब इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया, बहुत ध्यान से समझना कि अगर ये पॉइंट मेरा x, y है, तो इस पॉइंट के लिए ये x बार y बार है। x बार y बार क्या होते हैं इस चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है।
एक्स बार वाई बार जो होते हैं, एक्स बार वाई बार, आप याद कीजिए हमारे जो हमने फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं इस पुराने लेक्चर्स में, एक्स बार वाई बार डिनोट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इस क्वेश्चन की मेन बात है कि इस पॉइंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और रिवर्स भी ट्रू है। तो अगर इसको मैं एक्स वाई मानूंगा तो ये इसका एक्स बार वाई बार है। तो मेरे इस क्वेश्चन को करने का मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या हो जाएगा, मैं इस पॉइंट के लिए एक्स बार वाई बार फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करूंगा, उससे जो एक्स बार वाई बार आएंगे फॉर्मूले से उनको मैं इसकी इक्वेट कर दूंगा, यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दो कंसेप्ट होंगे वो हम कंपेयर करके इक्वल कर देंगे, उससे मेरा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं मेरा जो मेन कैलकुलेशन वर्क है ना। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स बार वी नो करके। अब याद कीजिए क्या थे, मैंने आपको बता रखे हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में, ये एक्स बार है, ये वाई बार है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इनको मैं एक्स वाई ट्रीट कर रहा हूं, एक्स की जगह 0 आएगा और वाई की जगह यहां बी आएगा, और y1 y2 की जगह क्या आएगा, तो y1 y2 जो होंगे यहां पर, दीज आर द वैल्यूज ऑफ dy by dx एंड dy by dx स्क्वायर फॉर दिस पॉइंट। यानी कि यहां पर y1 इज नथिंग बट y1 एट b एंड y2 इज नथिंग बट y2 एट b when x equals to 0, y equals to b, and in that case x bar equals to 0 and y bar equals to minus b। ये सारी बातें मुझे यहां पर पुट करनी है। ठीक है, लेकिन ये मैं जब भी पुट कर सकता हूं जब मैं y1 y2 की वैल्यू पहले फाइंड करूं। किससे फाइंड होगी y1 y2 की वैल्यू? किससे फाइंड करते हैं? बाय डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो है ना, तो अब कर्व की इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां मैं लिख दूंगा लैंग्वेज डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, देखिए आप, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई गेट, ये मैं सिंपल सा काम कई बार हम पहले कर चुके हैं, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखा मैंने, 2y y1। इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 2 से 2 कैंसिल, तो y1 की वैल्यू मैं फाइंड करता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? माइनस वाई बाई बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके x इधर ए स्क्वायर। ओके, तो ये तो y1 हो गया, लेकिन मुझे फाइंड करना है y1 एट b। तो y1 एट b का मतलब क्या हो गया कि b के जो कोऑर्डिनेट हैं 0, b, वो मैं इसमें पुट करूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2x बाई ए स्क्वायर, 2y अपॉन बी स्क्वायर y1। सो दिस इज y1 इक्वल्स टू माइनस वाई बाई बी स्क्वायर, एक्स बाई ए स्क्वायर, ये एक्स इधर आ जाएगा। तो अब मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू सपोज यहां पर x इज 0, y को b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे, 0, b आई थिंक। तो हियर x इज 0, x is coming in the denominator, y1 should come 0. There is a problem, I think. X square by a square plus y square by b square is equals to 1. Differentiating 2x plus 2y y1. Value of y1 is okay. तो मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, देखिए आप। वैल्यू ऑफ y1 इज माइनस x by a स्क्वायर, और y1 यहाँ y आ जाएगा, यहाँ b स्क्वायर, रिवर्स हो गया वो, यू प्लीज चेक इट। अब मैं यहां पुट कर रहा हूं y1 एट b, तो जब मैं यहां पर 0 पुट करूंगा और यहां b पुट करूंगा तो दिस होल वैल्यू बिकम्स 0।
मुझे कैसे पता पड़ी मेरी गलती? क्योंकि पहले यहां पर इन्फिनिटी बन रहा, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, आई अगेन स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग y1, वैल्यू ऑफ y1 टू गेट y2। तो y2 ऑब्टेन करने के लिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट है मेरा, x बाई y के लिए मैंने मेरा जो रूल है, रूल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए टर्म इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, वो मैंने अप्लाई किया है। ओके, माइनस एक्स इंटू y1 है ना, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, दिस इज माई वैल्यू ऑफ y2। नाउ अब मैंने y1 एट b फाइंड किया, सिमिलरली आई एम गोइंग टू फाइंड y2 एट b। तो इसके लिए मैं क्या पुट करूंगा बताइए? b की जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पुट करूंगा। b की इंफॉर्मेशन x 0 है, तो ये वैसे 0 हो गया, और y1 भी 0 है, 0 इंटू 0, ये टर्म में मेरी 0 बन रही है। फिर यहां पर मैंने बाकी रिमेनिंग टर्म में पुट किया मैंने, तो y की जगह मैंने b पुट किया, ये 0 हो गया, ये b स्क्वायर है, y की जगह b, ये b स्क्वायर कैंसिल, तो आई हैव resulting value as minus b by a square and it is the value of y2 at b. Okay, so y2 at b is minus b by a square. तो ये आपके सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप इसके अंदर पुट करेंगे, तो आप यहां पर कुछ नंबर वगैरह डाल देना इधर, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन x बार, और फिर हम कहेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y बार। तो आप यहां पर एक बार नोट कीजिए कि इसके अंदर जब मैं वैल्यू पुट करता हूं, ओके, इसके अंदर वैल्यू पुट करने पर मुझे रिजल्टिंग एक्सप्रेशन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये साइड तो 0 इक्वल टू 0 बन गई है। तो इससे तो मुझे फर्दर कुछ एडवांटेज नहीं होगा। अब मैं इसके अंदर पुट करूंगा, क्या क्या पुट करूंगा बताइए आप? y बार की वैल्यू मैंने अभी यहां y ऑफ कर दी, क्या लिखी थी y बार की वैल्यू? माइनस b, याद है? फिर मैंने y क्या था? y इज b, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b, स्मॉल b। फिर 1 प्लस y1 स्क्वायर, y1 इज 0, y1 मीन्स y1 एट b एंड y2 एट b इज माइनस b बाई a स्क्वायर। बस फाइनली अब 2 लाइन और बच गई इस क्वेश्चन में। इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो व्हाट आई गेट? 2b माइनस a स्क्वायर बाई b। देखिए आप कैसे, 2b के लिए मैंने इस b को इधर लगाकर ऐड कर दिया, तो ये b प्लस b 2b बन गया, और इसको मैंने यहां पर रिवर्स कर दिया, तो इधर रिजल्टिंग में 0 बचा। फिर मैंने यहां पर एलशियम लिया, व्हाट इज द एलशियम? b इज द एलशियम, और उस एलशियम को मैंने 0 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहां पर आकर हमारी फाइनल कैलकुलेशन स्टॉप हो जाती है। अब आपको प्रूव करना है e इक्वल्स टू 1/√2। तो ये काम आप जब भी कर सकते हैं जब आपको एक इलिप्स का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताओ। ये रिजल्ट आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपको आना चाहिए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फॉर एनी स्टैंडर्ड इलिप्स, a is the semi major axis, b is the semi minor axis and e is the eccentricity। तो यहां पर आपने b स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिया, और इस a स्क्वायर का उधर ले जाइए माइनस a स्क्वायर को, और फिर फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर इज कैंसिल्ड विद a स्क्वायर, तो रिजल्ट इज दिस वन। फाइनली इसको मैं लिख रहा हूं 2e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इससे मैंने e स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ऑब्टेन किया, और लास्ट में हम कहेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन, रूट ले लिया, और रीजन क्या देंगे? बिकॉज e इज अ रेशियो, तो ये कांट बी नेगेटिव, e इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स। वैसे भी एक्सेंट्रिसिटी कोनिक्स की प्लस होती है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, हैंस प्रूव्ड।
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने आज किए ये आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप स्टार्ट कीजिए क्वेश्चंस करना। जितना क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगी। मेरी तरफ से ये चैप्टर आज फिनिश है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, दैट इज एसिम्पटोट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।